A company with its head office at Mumbai has a branch at Kolkata. The branch received all goods from head office, who also remit cash for all expenses. Sales are made by the branch on credit as well as for cash. Total sales by the branch uh, for the year ended amounting rupees this. Out of this, 20% of cash sales. So we have some information like the following. Further information is relevant: opening stock, debtor and petty cash. So right here, to balance PD, to balance PD. देखिए हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस क्या है, लाइक इधर वन बाय वन स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश, पेटी कैश। सबका जो अमाउंट है वो अमाउंट भी लिखेंगे। अमाउंट का पार्ट कितना है, वन बाय वन, लाइक 25,000, 60,000 डेटर्स and 120 petty cash. Similarly, some are the closing balance. So in branch account, by balance CD, by balance CD, ब्रांच के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस CD, एंड क्लोजिंग में अगेन द सेम आइटम्स लिखो, डेटर, स्टॉक, इधर बाई बैलेंस CD में लिखना है स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश, पेटी कैश, and the amount are 36,000, 48,000 and 5,600, no 180, sorry 36 गलत लिख रहा है, 36, 48, 180, this amount is 180. Next part, check. This is the opening balance or are the two balance BD. These are the closing balance by balance CD. This is the opening date, that is by opening balance. This is the closing date, so this is the closing balance. Expenses actually incurred by branch during the year where the salary, rent and petty expenses. So right here two, थोड़ा डाउन में आकर, थोड़ा डाउन, बीच में एक स्पेस रख लेना, यस, टू बैंक कैश सेंड बाई HO, क्या हो जाएगा, सेंड बाई HO, HO मीन्स हेड ऑफिस सेंड कर रहा है। कौन कौन सा अमाउंट सेंड कर रहा है, सैलरी, रेंट एंड पेटी एक्सपेंसेस। सो दिस इज सैलरी, रेंट एंड फॉर पेटी एक्सपेंस, पेटी एक्सपेंसेस। सैलरी इज 36,000, सैलरी 36,000, rent 12,000 and the petty expenses is 5,600. Then all sales are made by branch at cost plus 25%. So in branch account, by cash and under cash, we need to write cash sales and collection from debtors.
कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, एक सी होगा, ठीक है ना, डबल हो गया, कलेक्शन, collection from debtors. So cash sales is not directly available, but information is given. Out of which 20% is cash sales. तो हमारे पास कैश सेल्स का इंफॉर्मेशन दिया गया है कि टोटल वैल्यू ऑफ कैश सेल्स हमारे लिए कितना होगा. तो comes to working part and right here total sales equals to 5,60,000 less cash sales. 20% of 5,60,000, 20% कितना आएगा 1,12,000, माइनस कर लें 4,48,000, दिस इज द क्रेडिट सेल. तो कैश सेल्स is 1,12,000. For the purpose of collection from debtors, we need to prepare a branch debtors account. A branch debtors account. छोटा सा एक लेजर ड्रॉ होगा. हाँ, चाहो तो लेजर के नीचे वर्किंग कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं था कि वर्किंग उधर ही करना था. नीचे कर सकते हो, पहले लेजर ड्रॉ कर लेना फिर वर्किंग सारा कर सकते हो. तो दिस इज ब्रांच डेटर्स अकाउंट, particulars amount, particulars amount, and then to balance PD in the opening balance of debtors 60,000 buying balance CD closing balance debtors 48,000, 48,000, 48,000, and the credit sales is 4,48,000 to credit sales 4,48,000. Take any other information और कोई information नहीं है, then make the debtors balancing. This is buy cash, that is collection from debtor balancing figure. आंसर बताओ. कितना आएगा 4,60,000. तो 4,60,000 इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. बट एक एंट्री हमारे लिए अभी वाइटल है, विच इज टू गुड्स सेंड टू ब्रांच. पूरा कंसाइनमेंट का डुप्लीकेट है, ठीक है ना, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये हमारे पास मिसिंग है. तो गुड्स सेंड टू ब्रांच का वर्किंग क्या होगा, अदर एंट्रीज अवेलेबल है. गुड्स सेंड टू ब्रांच मींस व्हाट, देखो इधर टू सॉरी ओपनिंग स्टॉक प्लस goods sent equals to what, COGS plus closing stock, COGS plus closing stock. ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा हो जाएगा. ओपनिंग स्टॉक का फिगर कितना है 25,000. goods sent इंफॉर्मेशन मिसिंग है. COGS is also not given. तो अगेन देखो इधर सेल्स 5,60,000, then less ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट
ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन है, यस बोलो। ब्रांच डेटर के 2 में 4,60,000 नहीं 4,48,000। ये तो क्रेडिट सेल निकाले थे, टोटल सेल माइनस कैश सेल्स बिकम्स द क्रेडिट सेल्स। And here gross profit rate is what? Cost plus 25%. Then 25% on cost, then what percentage on sale? Yes, 20% on sale. So 20% of 5,60,000 कितना आंसर आएगा? Again 1,12,000, 4,48,000। किसी को अगर डायरेक्टली 20% समझ में नहीं आता तो डोंट वरी, इंटू 25/125 कर लेना, एक ही बात है। अब ये 4,48,000 COGS में आ गया। क्लोजिंग स्टॉक 36,000 इज गिवन, तो तुम्हारे लिए फिगर निकल गया ना, गुड सेंट, गुड सेंट। इन दोनों को ऐड करके 25,000 माइनस करो, कितना आएगा? कितना कितना क्या बोल रहे हो? जब 4 लाख है तो आंसर 76 है, मतलब तो अच्छा ये सिर्फ बोल रहे हो क्या 4,76,000? एक एक 4,84,000 माइनस 25,000 कितना आएगा? 4 लाख 4,59,000। यस, दिस इज अ गुड सेंट। 4,59,000 इधर करेंगे। ये जो ब्लैक वाला डेटा है ये इन्फॉर्मेशन था नहीं, ये इन्फॉर्मेशन ही फाइंड आउट करना है, बस इस क्वेश्चन का यही डिफिकल्टी है कि तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग रहेगा। अभी क्या करना है? अभी बैलेंस करना है आइदर टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वर्ड यहाँ नहीं यूज करते, ब्रांच प्रॉफिट, ब्रांच प्रॉफिट। और अगर बाई साइड में आया तो ब्रांच लॉस। ये पहले कॉपी कर लो सब लोग। एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है इधर, ये पेटी कैश, पेटी एक्सपेंसेस, इधर वाला एक्सपेंसेस नहीं, पेटी कैश रिसीव वर्ड होगा, मतलब जितना पेटी कैश का पैसा आया उतना, खर्चा नहीं। पेटी कैश रिसीव, अभी पेटी कैश रिसीव का कॉन्सेप्ट क्या है उसके लिए फिर से एक फॉर्मूला, ओपनिंग पेटी कैश प्लस कैश रिसीव इक्वल टू कैश एक्सपेंसेस प्लस क्लोजिंग पेटी कैश। हमारे पास अल्टीमेट स्टोरी क्या होगा, पहले से जितना रहेगा, जितना हमें रिसीव होगा वो खर्चा करेंगे और बच जाएगा। ओपनिंग पेटी कैश का फिगर कितना है? 120। पेटी कैश रिसीव्ड हमें नहीं पता, कैश रिसीव्ड, पेटी कैश एक्सपेंसेस इज गिवन, so 5,600 is the expenses part, and what is the closing petty cash? Closing petty cash is 180। तो मेरे लिए हो जाएगा कैश रिसीव्ड, ऐड करो कितना आएगा? 5,780 माइनस 120, लेस करके बताओ। 5,660, 5,660। तो इधर पेटी कैश रिसीव में आएगा 5,660, 5,660। देन आंसर इज 58,400। अभी तुम लोगों को मैं नोट लिखाता हूं, थोड़ा सा वेट कर लो। तो हमें कैश रिसीव लिखना है, यस, इन ब्रांच अकाउंट वी रिकॉर्ड द पेटी कैश रिसीव्ड, इन ब्रांच अकाउंट वी यूज पेटी कैश रिसीव्ड।
अभी देखो, अभी क्लियर हो जाएगा, अभी नोट अभी नहीं देता हूँ, अभी तुम लोगों को एक अगला ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करो, ट्रेडिंग एंड पीएल। मैं पता है कि ट्रेडिंग पीएल का लाइन वही होगा जो ब्रांच अकाउंट का लाइन है उसका। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का भी ब्रांच ट्रेडिंग हो सकता है, जिसमें पूछा जाएगा एग्जाम में। इसलिए कभी कभी मार्क्स इसलिए नहीं पूछता, नहीं मिलता, क्योंकि पूछा जाता है ब्रांच ट्रेडिंग हम बनाते हैं ब्रांच, और बोलता है ब्रांच हम बना देते हैं ब्रांच ट्रेडिंग, प्रॉफिट दोनों में सेम आता है, मार्क्स नहीं मिलेगा। जो पूछा जाएगा तुम्हें भी उसी का आंसर देना है। डेबिट क्रेडिट सबसे टॉप में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, इधर ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्या था ईयर एंडेड? 31 मार्च 2011, 31 मार्च 2011। अभी जो भी कुछ डेटा मैं पूछूंगा ऑलरेडी तुम्हारे पास ब्रांच अकाउंट किया हुआ है, तो डेटा मुझे वहीं से बताते रहना, जिसके पास क्वेश्चंस नहीं है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का स्टाइल क्या होता है समझो, इधर होता है टू ओपनिंग स्टॉक, बाई साइड में होता है बाई क्लोजिंग स्टॉक, डेबिट साइड में होता है परचेज, इधर बाई साइड में होता है बाई सेल्स। सेल्स मतलब बोथ, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो। तो अभी ओपनिंग स्टॉक का फिगर बताओ कितना है? ओपनिंग स्टॉक 20, 25,000। हाँ, एंड क्लोजिंग स्टॉक 36,000। एंड व्हाट अबाउट परचेज? परचेज मींस गुड्स सेंट। चेक करना कोई गुड्स रिटर्न है क्या, नहीं। एंड गुड्स सेंट हमने वर्किंग से गुड्स सेंट निकाला था, व्हाट इज द गुड्स सेंट? 4,59,000 इज द गुड्स सेंट। Sales, cash sales is 1,12,000, credit sales is 4,48,000, total sales is 5,60,000. Make the balance, and the balance is, and balance हमारे लिए क्या आएगा? टू gross profit CD, make it by gross profit PD। हाँ, जो भी आएगा बताओ क्या आएगा। 1,12,000। तो बाई बैलेंस BD is 1,12,000। एंड द एक्सपेंडिचर पार्ट, ब्रांच में देखो क्या क्या एक्सपेंसेस था। रेंट, रेंट कितना था? 12,000 इज रेंट। टू सैलरी 36,000। टू, अब याद रखना, पेटी एक्सपेंसेस, दिस टाइम एक्सपेंसेस नॉट द रिसीव्ड। व्हाट इज द एक्सपेंसेस? 5600। जस्ट डन। कोई भी और कुछ है? बैड डेट वगैरह नो एंट्री। क्या करेंगे? मेक इट बैलेंस। इधर जो नेट प्रॉफिट आएगा वो ब्रांच प्रॉफिट के इक्वल रहेगा, टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। चेक करो इधर का जो बैलेंस है भाई सेम बैलेंस रहेगा ब्रांच का। आ रहा है। इट मीन्स हमारे पास सॉल्व करने का दो स्टाइल है, हम लोग ये दोनों स्टाइल में सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट।
अभी मैं तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3, अभी क्वेश्चन नंबर 3 दूंगा और इसका भी तुम्हें ब्रांच या क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कि ब्रांच ट्रेडिंग पूछा गया है। सो क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी क्लास में करवाया हुआ है। द ब्रांच ट्रेडिंग तुम लोग अभी प्रैक्टिस करोगे, अभी सॉल्व करके दिखाओगे ब्रांच ट्रेडिंग। देखो लास्ट डे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराया था, ब्रांच अकाउंट ये रहा। देख रहे हो, इसमें मैंने सिर्फ ब्रांच डेटर एक्सप्लेन किया था, अदर्स एंट्री तुम लोगों ने खुद से कर लिया था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का ब्रांच ट्रेडिंग करना है, याद रखो ब्रांच अकाउंट नहीं, ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पे, ब्रांच ट्रेडिंग अभी सॉल्व करके दिखाओ। पेटी कैश वाले पे बात कर लेते हैं। पेटी कैश वाले के लिए क्या करेंगे, ये देखो कैश सेंड बाय हेड ऑफिस है, तो मेरे पास आएगा ओपनिंग प्लस सेंड इज इक्वल टू एक्सपेंसेस प्लस क्लोजिंग। अच्छा सब जगह पे पेटी कैश वर्ड लिख देना। ओपनिंग 100 है, 5000 इक्वल्स टू एक्सपेंसेस निकालना है हमें, क्लोजिंग 150। ये हो जाएगा 5100 माइनस 150 इक्वल्स टू एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस इज इक्वल टू आ जाएगा 4950। अभी क्या करोगे, जैसे ये गुड्स सेंड टू ब्रांच है, डेबिट साइड में 1,42,000 माइनस 4,000 करोगे, माइनस 1,38,000 आउटर कॉलम। कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स इन दोनों को ऐड करके बाई सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हमारे किसी काम का नहीं। रेंट डेबिट पीएल अकाउंट, सैलरी पीएल एंड पेटी एक्सपेंसेस आएगा 4950। इधर ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, बस इतना ही डेटा लेना, बाकी बात डेटा हमारे काम का नहीं है। डन, गुड। नेट प्रॉफिट मैच कर दिया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 से अब एक न्यू टाइप का सम स्टार्ट होता है विथ लोडिंग। अभी हम ये चाहते हैं कि मेरा जो ब्रांच है ना, मैं जो बोलूं बस वो करे, मैं बोलूं वो करे मींस मैं बोलूं जितने पे माल बेचना है बेच दो, मैं उसे कॉस्ट प्राइस डिस्क्लोज करना नहीं चाहता हूं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं सामने वाले को कॉस्ट के साथ प्रॉफिट ऐड करके ही बता रहा हूं। लेकिन बेटा जैसे हम लोग डिपार्टमेंट में भी देखे कि अनरियलाइज प्रॉफिट का कंसेप्ट है ना, कंसाइनमेंट में भी ऐसा होता था कि अगर हम सामने वाले किसी को सामान भेज रहे हैं और उस पर हम लोडिंग चार्ज करके भेजेंगे, तो हमारे लिए तो जैसे क्या हो रहा है, ये एचओ, इसे पता है कि 100 रुपीज का माल है, 20 रुपीज का प्रॉफिट ले रहे हैं, 120 में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग तो 120 पे होगा। बट जब तक ये एक्सटर्नल कस्टमर को सेल नहीं हो जाता, हेड ऑफिस के लिए तो पता है कि 120 का कॉस्टिंग नहीं है, कॉस्टिंग तो 100 है। तो क्या करेगा वो 120 में 20 लोडिंग दिखाएगा, क्या दिखाएगा, लोडिंग। और इसके लिए परसेंटेज बहुत मैटर करता है, परसेंटेज वाला कैलकुलेशन, कॉस्ट टू सेल, सेल टू कॉस्ट डायरेक्टली ट्रांसफर करना। एंड इसके लिए तुम लोगों को बहुत टाइम शॉर्टकट फाउंडेशन लेवल पे भी शॉर्टकट वगैरह दिखाया गया। फाउंडेशन लेवल पे शॉर्टकट देखे हो ना क्या, 66.67, सॉरी 66 नहीं, लोग स्टार्ट करेंगे 16 से, 16.67, 20, 25, 33.33, 50, 100। एंड इसका स्टाइल क्या होता है, सेल परसेंटेज इज ऑलवेज लेसर देन कॉस्ट परसेंटेज, दिस इज सेल्स, दिस इज कॉस्ट। इफ 20% ऑन सेल देन 25% ऑन कॉस्ट। शॉर्टकट होता है 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, हाफ एंड 1। क्लियर है क्या। अभी जो क्वेश्चन है कुछ वैसा ही है। A business firm opened a branch at Nagpur on 1st April 2010 and the goods were sent by head office to branch at cost plus 25%. The following are the particulars of the transaction relating to the branch for the accounting year ended 31st March 2010. Goods sent to branch at invoice price, and invoice क्या है देखो, cost plus 25। मुझे बताओ if 25% on cost then what percentage on sell, 20% on sell। एंड साथ में बेटा एक ट्रेडिशनल मेथड भी याद रखना,
सीपी प्रॉफिट और एसपी होता है. इफ 25% on cost, then the cost becomes 100. If 25% on sell, then your sale becomes 100. In both cases, profit is 25. Complete the equation. Selling price becomes 125 and your cost becomes 75. कोई दिक्कत? यस, डिपार्टमेंटल में भी समझाए थे. वेरी गुड. हाँ, बस एक बार कहीं समझना है. फाउंडेशन में भी पढ़ा है. फाउंडेशन में भी कंसाइनमेंट के टाइम पे या अलग अलग टॉपिक में कराया हुआ है. बट शॉर्टकट परसेंटेज बेटा जितने शॉर्टकट्स उधर अवेलेबल है उसी पे होगा. शॉर्टकट परसेंटेज हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है. जैसे अगर 22% दिया तो जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो मेन मेथड है, वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा 100 + 22 करके. बाकी मत फॉर्मेट वाला जो पार्ट है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ. ये मेरा ब्रांच अकाउंट है. ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? टू बैलेंस पीडी एंड चेक द ओपनिंग बैलेंसेस. क्या क्या है? ब्रांच क्या पहली बार स्टार्ट हो रहा है क्या? यस. ओपन द न्यू ब्रांच. इट मींस देयर इज नो बैलेंस बीडी. ओनली आएगा बाइंग बैलेंस सीडी. ठीक है, जब आएगा तब देख लेंगे. अभी हमारे पास गुड्स सेंड टू ब्रांच है. सो इन डेबिट साइड you write goods sent to branch. Goods sent to branch. कितना? Goods sent to branch 3,51,000, but the amount is at invoice price. So make a loading. Buy goods sent to branch dash लोडिंग और ब्रैकेट में 20%. क्यों? 25% कॉस्ट था ना. देन 20% ऑन सेल. तो इन ब्रैकेट 20% ऑफ 3,51,000. कितना आंसर आएगा? $70,200. 70,200. इसके बाद क्या करेंगे? अगला देखो एंट्रीज क्या है? सेल्स. हमें पता है कि ब्रांच अकाउंट में हम लोग लिखते हैं बाई कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. हमारे लिए कैश सेल्स क्या है? 1,25,000. 1,25,000. फॉर द कलेक्शन फ्रॉम डेटर यू नीड टू ओपन द ब्रांच डेटर्स. ब्रांच डेटर इधर देखो, कैश कलेक्टेड फ्रॉम ब्रांच डेटर इज गिवन. तो ब्रांच डेटर नहीं भी ओपन करोगे तो चलेगा, लेकिन हाँ क्लोजिंग है कि नहीं वो बाद में देखते हैं. तो कैश कलेक्टेड फ्रॉम ब्रांच 1,56,000. दिस अमाउंट इज ऑल्सो गिवन. देन देखो इधर क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस. सो अंडर बाई बैलेंस सीडी यू राइट हियर स्टॉक. and what is the amount of stock? 55,500. This amount is also at invoice price. So you make stock reserve loading. स्टॉक के ऊपर जो रिजर्व निकालते हैं उसे स्टॉक रिजर्व बोलते हैं. डिपार्टमेंटल में भी कराया गया है, याद है क्या? डिपार्टमेंटल में भी स्टॉक रिजर्व ऐसे ही निकलता था. स्टॉक रिजर्व इज व्हाट? 20% ऑफ 55,500. व्हाट इज द आंसर? 11,000. Next, wages, freight, other expenses. So in debit side, to bank, cash sent by HO, and the expenses are wages, freight, other expenses. Wages, freight, other expenses. कितना आएगा? 3,000, 11,000, 3,000, 11,000, 6,000. हो गया? इधर देखो, स्पॉइल गुड्स रिटर्न ऑफ एट द इनवॉइस प्राइस. हम लोग नॉर्मल लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना. नॉर्मल लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा. क्या करोगे इधर?
एंट्री निकालो, लिखो टू प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट नहीं, अभी इधर क्लोजिंग डेटर लिखना मत भूल जाना। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग डेटर निकलेगा ना, क्योंकि कलेक्शन गिवन है और क्रेडिट सेल्स का फिगर अलग है। वैसे अगर तुम ब्रांच डेटर नहीं बनाओगे तो ओरली बना सकते हो। ये मेरा ब्रांच डेटर है। ब्रांच डेटर में लिखेंगे टू बैलेंस पीडी हमारे लिए नील है, देन लिखेंगे टू क्रेडिट सेल, क्वेश्चन में गिवन था हाउ मच 175। कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर भी गिवन है बाई कैश 1,56,000। तो रिमेनिंग फिगर तो सीडी होना चाहिए कि नहीं? बाई बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर कितना 15। यस, ये चाहते तो ओरली भी निकाल सकते थे। अब इसे बैलेंस कर दो, हो गया। बस इसमें नया चीज क्या है, इधर देखो, इनवॉइस प्राइस पे है उसका लोडिंग, ये स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे है उसका लोडिंग। अच्छा सपोज गुड्स रिटर्न रहता उसका भी लोडिंग, गुड्स रिटर्न रहता तो उसका भी लोडिंग। अगला क्वेश्चन मैच करा लिए, यहाँ एक डिस्काउंट अलाउड भी था, इनकॉर्पोरेट कर लेना। तो ये 6 है, आप खुद से कर रेक्टिफाई करो, मैं बताऊंगा नहीं। लोडिंग प्राइस वाला सम से एक बार इसे सॉल्व करके देखो, सॉल्व कर पा रहे हो क्या? समझ में आ गया? ये ओपनिंग स्टॉक है, टू बैलेंस बीडी एंड बाई साइड में स्टॉक रिजर्व। एक काम करता हूँ, एंट्री मैं भी करता हूँ रेफरेंस, यहाँ क्लास है तो। ये मैं तो इधर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, तो सबसे पहले स्टॉक आएगा, तो ये स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे 3,500 बाई स्टॉक रिजर्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कितना? 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस, वॉइस पे ही 20 है, मतलब सेल पे ही 20 है, तो सीधा करेंगे, चला लो फैन होगा। 20% ऑफ 3,500 कितना आएगा? और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है बाइंग बैलेंस डी स्टॉक कितना आएगा? स्टॉक 3750 लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व एंड 20% ऑफ 375 आएगा। नेक्स्ट फूड सेंड टू ब्रांच, बट ये कॉस्ट पे है तो याद रखना इसे भी इनवॉइस पे करना पड़ेगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच, यही तुम गलती की हो। 2,20,000 प्लस करना है हमें कॉस्ट, अगर 20% ऑन सेल देन व्हाट परसेंटेज ऑन कॉस्ट? 25% ऑन कॉस्ट, तो नीचे इधर लिखेंगे 25% ऑफ 2,20,000 कितना आएगा? और दोनों को ऐड करके बताओ। 2,75,000, 2,75,000। बस ये एक नया चीज है क्योंकि इसको भी इनवॉइस पे लेना होगा। एंड देन बाई गुड्स इनटू ब्रांच डैश लोडिंग। अब तुम्हें पता है कि एक्स्ट्रा 55,000 हुआ ऐसे, और 20% तुम्हें पता ही है सेम आंसर है, दोनों का आंसर सेम रहेगा। इधर देखो कैश सेल्स, इसको हम लोग बाई साइड में लिखेंगे बाई कैश, नीचे कैश सेल्स लिखेंगे
50,000. क्रेडिट सेल डायरेक्टली गोज टू ब्रांच डेटर. रिटर्न फ्रॉम कस्टमर ब्रांच डेटर के बाय में डिस्काउंट अलाउड ब्रांच डेटर एट डे ब्रांच डेटर एंड कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 3,29,000. दैट इज कलेक्शन. ब्रांच डेटर बना के क्लोजिंग बैलेंस में काम आएगा. अगला देखो सन्ड्री डेटर क्लोजिंग. ओपनिंग क्लोजिंग किया इसका मतलब इसमें डेटर बनाने की जरूरत ही नहीं. ऊपर में लिखोगे सन्ड्री डेटर्स. इधर हो गया डेटर्स 48,000. इधर डेटर्स आ गया 44,000. हो गया ना. हाँ एक और है खर्चा है. सबसिस्टेंट चार्जेस 85,000. इधर लिखेंगे टू बैंक एक्सपेंसेस. कितना 80 हो गया 85,000. अब तुम लोग इसके आगे का सम्स कर पाओगे. कहाँ तक कर पाओगे मैं बोल दे रहा हूँ. 7, 8, 9 एंड 10. 7, 8, 9, 10. कौन सा रिटर्न दिया हुआ है. यस यस इधर आएगा. यस एक एंट्री और होगा. जैसे गुड्स सेंड टू ब्रांच है ना. इधर एक एंट्री और होगा. बाई गुड्स सेंड ब्रांच. इधर लिखेंगे रिटर्न. कितने का माल रिटर्न किया है 15,000 इनवॉइस प्राइस पे. इधर डेबिट साइड में लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच एंड टू ब्रांच रिटर्न डैश लोडिंग के ऊपर भी निकालेंगे 20% ऑफ 15,000. जितना भी इनवॉइस प्राइस का आइटम है पे लोडिंग निकालेंगे. ठीक है. एक ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गुड्स सेंड और गुड्स अगर रिटर्न कर रहे हैं हेड ऑफिस को तो उस पर करेंगे. लेकिन जो कस्टमर रिटर्न कर रहा है उस पर मत कर देना. एड्रेस अकाउंट वाले पे नहीं होगा. हम्म. एक बार बोलो क्या बोले. ये একটা শর্টকাট পার্সেন্টেজের শর্টকাট. हाँ এটা একটা डिपार्टमेंटल ভিডিওটা আছে. হ্যাঁ डिपार्टमेंटल का वीडियो जब देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा. डिपार्टमेंटल वाला वीडियो मैं अपलोड करवा देता हूँ उसमें. वो अगर एक बार जैसे क्लास करोगे उसमें इस परसेंटेज को बहुत ही डिटेल में समझाया याद है. कैसे सेल परसेंटेज बनता है कैसे कॉस्ट परसेंटेज बनता है. और देख लो कहीं पे जोड़ घटाव में भी तो गलती हो सकती है.